गुड इवनिंग बेटा. Good evening, sir. Should we start बेटा? Yes, sir. So yesterday we had just completed with your Wheatstone Bridge बेटा. एक बार जल्दी से. Wheatstone Bridge हम लोग ने किया था. And also we have done with your slide wire bridge. Slide wire bridge. फॉर्मुलेस बताओ इसके जल्दी से. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था बेटा? In the Wheatstone Bridge for the balancing condition, P by Q must be equal to R by S. And if X is an unknown resistance, if S is equals to X is unknown resistance. Unknown resistance. So I can calculate this balance. अभी क्लास चल रही है. मेरा P by Q is equals to R by X. इसमें से मैं X की वैल्यू निकाल सकता हूँ. X is equals to your R into Q divided by your P. So this is the unknown value in the Wheatstone bridge. In a slide wire bridge, if a balance point is obtained at L centimeter बेटा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? P by Q is equals to R by your X, and that will be equal to your L by your 100 minus of your L. So in unknown resistance, X can be calculated by the formula X is equals to your 100 minus L into your capital R divided by your L. So these are the basic formulas of your Wheatstone bridge and as well as of your slide wire meter bridge के condition पे. Is it clear? Yes, sir. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इस पे से. Then we'll try to start with your potentiometer. क्वेश्चन लिखो basically in a meter bridge, in a meter bridge, in a meter bridge, the length of the wire, the length of the wire, the length of the wire is 100 centimeter. At what position? At what position will the balance point, will the balance point be obtained? Balance point be obtained if the two resistance, if the two resistance are in the ratio, or in the ratio 2:3. Unmute yourself बेटा. आवाजें आ रहे बहुत सारे. Okay. In a meter bridge, the length of the wire is 100 centimeters beta. And at what position will the balance point be obtained if the two resistance are in the ratio of your 2:3 part of relation? For balanced Wheatstone bridge condition क्या है बेटा? X by your R is equals to ये कितना था? L by your 100 minus of your L. Given for me what? Given for me X by your R is equals to 2/3. यानी ये हो गया 2/3 is equals to L by your 100 minus of your L. तो ये हो गया 200 minus of your 2L is equals to 3 इधर चले गया. So this will be 3L. So this is 200 is equals to a minus इधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 5L. So L will be equal to your 200 divided by 5. That will be equal to 40 centimeter. 40. Is that clear? Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. चलो. ये अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा. एक बार आप लोग ट्राई करो बेसिकली. So you can be in a position to do it out. In my meter bridge experiment, two resistance P and Q are connected in series to the left gap beta. In your meter bridge,
in your meter bridge, two resistance P and Q. P and Q are connected. P and Q are connected in series. In left gap. In your left gap. Wheatstone bridge का slide wire meter bridge का left gap right gap याद है ना? चलो. When the right gap is having, and the right gap is having 50 ohms of resistance, the balance is at center of wire. If P and Q are connected, if P and Q are connected in parallel, beta. If P and Q are connected in parallel in your left gap, the resistance in right gap, has to be changed by 12 ohms. Okay, to obtain balance point, your balance point at same position, at your same position. Find P and Q. चलो, मीटर ब्रिज याद है ना? जल्दी से एक बार रफली में बता देता हूँ. ए वाला एक गैप था, ए वाला एक है और ए वाला एक है, और यहाँ पर था टर्मिनल ए और यहाँ पर था टर्मिनल सी, और इन दोनों के बीच में एक वायर था जिसको हम लोग वायर बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है, दिस वन इज नोन एज रेसिस्टेंस बॉक्स, और यहाँ पर एक अननोन रेसिस्टेंस होता है, दैट वाज नोन एज ऑफ योर एक्स. So this gap is nothing but what for me right gap, and this one is nothing but of your left gap part of relation. So and these are connected to your batteries, और यहाँ पर एक galvanometer है, and this is connected to your jockey, and here there is a battery with your key connection. ये ऐसा कुछ था अपने पास मीटर ब्रिज. अब जल्दी से करो. The meter bridge, two resistance P and Q are connected in series in the left gap, in your left gap part of relation. When the right gap is having your 50 ohms. कितना बेटा? 30 ohm and 20 ohm. 30 and 20 ohms बेटा. कौन करे? Darren Raza, very good. चलो, अपना फॉर्मूला क्या था बेटा? X by your R is equals to L by your 100 minus of your L. तो अब यहाँ पर देखो, राइट गैप में we are having 50 ohms resistance, यानी R की वैल्यू हो गई 50 ohms, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हो गई 50 ohms. In a meter bridge, two resistance P and Q are connected in series in the left gap, यानी X की जगह हम लोग के पास क्या है? P plus Q. तो इसकी वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, तो ये हो गया P plus Q divided by your 50 is equals to balancing length was exactly at center, यानी 50 centimeter. 50 divided by your 100 minus of your 50 part. तो ये कितना बन रहा है? देखो, ये 100 minus 50, ये तो 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, यानी P plus Q is equals to कितना आ रहा? This one is a 50. This is equation number 1. अब उसके बाद उसने क्या बोला? P and Q are now connected in parallel. पहले में तो सीरीज में था, अब उसके बाद पैरेलल में हो गया. So पैरेलल में हो गया मतलब X क्या हो जाएगा बेटा? P into Q by P plus Q हो जाएगा, isn't it? And the right gap is to be changed by how much? इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज किया आप लोग ने? 12 ohms को चेंज कर दिया basically. So I can write this one as of your resistance के जब बाद
P into Q divided by P plus of Q, और इसका रेसिस्टेंस है 12. बैलेंसिंग पॉइंट इज अगेन एट द सेम 50 by 100 minus 50, तो ये हो गया कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. सो P into Q will be equal to, this one is your 12, ये इधर चले जाएगा, this one will become for me P plus Q. आया सभी को. सो दैट इज इक्वल्स टू your 12 into P plus Q की वैल्यू कितनी है अभी अपने पास 50. सो 12 5 60, तो ये हो गया 600. यानी P into Q की वैल्यू हो गई मेरे पास 600 बेटा. अपने को ये फॉर्मूला मालूम है, a minus b whole square is equals to your a plus b whole square minus of your 4 into your a into your b. तो मेरे पास देखो राइट नाउ क्या क्या मालूम है मेरे पास, a minus b में राइट नाउ यहाँ पर लिख सकता हूँ p minus q whole square is equals to p plus q whole square minus 4 times of p into q. तो p plus q की वैल्यू कितनी है 50 बेटा, तो ये हो गया 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू P इंटू Q की वैल्यू कितनी है 600. तो ये बना कितना 5 5 जा 25, 2500 माइनस 6 4 जा 24, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 24, तो ये बन गया 100. यानी P माइनस Q होल स्क्वायर की वैल्यू बन गई 100. यानी P माइनस Q की वैल्यू हो गई कितना बेटा 10. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो मेरे पास P प्लस Q है, मेरे पास P प्लस Q है 50 और मेरे पास P माइनस Q है 50. So if I solve 1 and 2, see what I am getting right now. Solve 1 and 2. P plus Q कितना है मेरे पास 50 है और P minus Q कितना है मेरे पास 10 है. तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 आ रही सर. P is equals to 60. 60 by your 2 ये हो गया 30. आया से भी 30 आ रही. ये माइनस रह जाएगा बेटा. P plus P, this will be 2P. 50 plus 10 will be 60. 2P is equals to your 60 हो गया. तो P is equals to 60 by your 2. तो कितना हो गया 30 ohms. अगर P की वैल्यू 30 ohms है तो ऑब्वियसली आप रिमेनिंग वैल्यू भी निकाल सकते हो ऑब्वियसली. सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो देयरफॉर Q वैल्यू विल बिकम हाउ मच और P वैल्यू यहाँ पर डालो 30 minus of your 10, that will be equal to 20 ohms. आया सभी को. Yes, sir. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मैं असाइनमेंट भेजूंगा आप लोग को मीटर ब्रिज का, वो आप लोग खत्म कर लीजिए. Now let us try to do with your last topic of this one, that is about your potentiometer. And also we have along with that one instruments भी है बेटा, ammeter and as well as of your galvanometer part affiliation. चलो let us try to go for the next one, that is about your potentiometer. पोटेंशियोमीटर. एक्चुअली हम लोग वोल्टेज कैसा मेजर करते थे, आप लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा. वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं और करंट मेजर करने के लिए अमीटर यूज कर सकते हैं. और अमीटर वोल्टमीटर बहुत कंपैक्ट होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, तो इजीली कैरेबल होते हैं. इवन दो उसमें थोड़ा डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, बट स्टिल वी कैन इजीली कैरी फॉर दैट वन. दैट इज द रीजन दे आर मोर वाइडली यूज्ड कंपेयर्ड टू पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है बेटा. कैरिंग एवरी टाइम टू मेजर द पोटेंशियल इज नॉट एडवाइजेबल. जब मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो जब भी हम लोग पोटेंशियोमीटर के लिए जाएंगे. बट एनी ऑफ potentiometer is used to what data, it is also used to measure what potential difference. I can write that it is used to measure potential difference. It is used to measure what potential difference, more accurate as compared to voltmeter, ठीक है ना. बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है पोटेंशियोमीटर, बट ये जनरली ज्यादा यूज नहीं करते हैं. बट वी यूज ए लॉट विद पोटेंशियोमीटर इवन दो देयर इज अ स्मॉल एरर बेटा बेसिकली. एंड वोल्टामीटर इज मोर वाइडली यूज कंपेयर्ड टू योर पोटेंशियोमीटर because of its small size and convenience to carry from one place to your another place part affiliation. Any of that is not our concern here right now. So potentiometer is used to measure what beta? It is used to measure your potential difference, more accurate compared to your voltmeter part affiliation. And it is used also, it is used to number one measure, it is used to measure EMF of a cell. EMF of a cell. एक सेल के EMF मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं. And it is also used to compare
It is also used to compare. It is used to compare EMF of two cells. EMF of your two cells. And lastly, it is used to determine. It is used to determine the internal resistance of a cell. Internal resistance of your cell. So these are the three basic uses of your potentiometer, beta. Potentiometer is used to measure what, beta? First one, it is used to measure the EMF of a cell. It is used to compare the EMF of your two cells, and it is also used to measure the internal resistance of your cell part of a relation. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? And I also told you in the last session of a class, beta, anything divided by length is called as what, beta? Anything divided by length is called as of what? कोई तो भी बोलना. Anything divided by length called as. क्या हुआ? Gradient. वेरी गुड. ग्रेडियंट याद नहीं है? लास्ट टाइम में बताया था मैंने आप लोग को. Anything divided by length is known as of your gradient. Anything Gradient. divided by time is known as of your rate. Anything divided by your what do you call that one? Time is known as of your rate part of relation. Clear है सभी को? चलो. Yes, sir. Can anyone tell me what is the principle on which it is working, beta? Principle of potentiometer. Null point. Null point method. Null point. It is an other name for what? Null point method. It is also called as of your null point method or experiment को बोलते हैं हम लोग null point method. इसमें होता क्या है देखो बेटा, if a constant current, मान के चलो मेरे पास एक 10 एम्पियर है. If a constant current is passed through a wire, if a constant current is passed through a wire, ये लाइन अगर समझ में आ गई ना तो बाकी का पूरा पोटेंशियोमीटर बहुत आसान है बेटा. If a constant current is being passed through a wire of uniform cross section, वायर पूरा अपने पास यूनिफॉर्म होना चाहिए. It should be of your uniform cross section. The potential difference across any segment, your any segment of a wire is proportional to length. ये बोला था साइंटिस्ट ने. उसने क्या बोला, अगर एक कांस्टेंट करंट आप कोई भी एक वायर में भेज रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा वायर क्यों ना हो, so if a constant current is being passed through a wire of uniform cross section, then the potential difference across any segment of the wire is proportional to what, beta? Length of the wire. This is our basic condition. So if you are producing or if you are sending a constant current right now, potential difference across your any segment of your wire is proportional to your length. यानी potential is directly proportional to what, beta? Potential is directly proportional to your length. ये proportionality constant अगर हम लोग निकाल रहे हैं, we get a constant that is known as of your K. So V is equal to your K into your L. So K is known as of your potential per your unit length. Potential per unit length is known as of your potential gradient. इसको हम लोग बोलते हैं potential gradient. This one is known as of your potential gradient. ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब जब हम लोग वायर ले रहे हैं बेटा, when we are taking a wire right now, देखो मान के चलो एक छोटा सा वायर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसके अंदर एक करंट जो भी पास हो रहा, that current is your I, area is your constant, area is a constant. तो इस वायर का रेजिस्टेंस कैसा निकालोगे अपने को? R is equals to rho into L by your A, और potential of this one is V is equals to I into your R. So that will be equal to I, this is rho into L divided by your E. तो यहाँ पर देखो V में अगर I constant है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो क्या V is directly proportional to L हुआ कि नहीं हुआ?
that only what I have written here, right? ठीक है ना? Yes sir. Okay. So V is equal to I into R में ये जो V is directly proportional to L जो आया ना, that is from your potential Ohm's law का relation. V is equal to I into R. Resistance of this wire is R is equal to rho into L by your A. अगर current constant है, material constant है, area of cross section is a constant, then V is directly proportional to your L. Removing that proportionality constant, we are getting a constant known as of your K. That K is known as of your potential gradient. That K is known as of what? Potential gradient part of relation. ये देखो बेटा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो. यहाँ पर बेसिकली मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, ओके, एंड दिस वन इज बीन कनेक्टेड टू योर वायर. मान के चलो मेरे पास एक वायर है, सो ये हो गया वायर, यहाँ से यहाँ तक मैं एक वायर लगा रहा हूँ. सो दिस इज योर वायर. सो ये वायर है मेरे पास ये से लेके बी तक, and this is your EMF of your battery. Length of this one is nothing but of your L. Length of this one is known as of your L. This one is known as of your primary circuit. This one is known as of your primary circuit part of relation. अब इस वायर के अंदर मान के चलो somewhere at a point of your C, after traveling a distance of your X, AC के पास, potential across your AC जो भी होता है basically is equals to your, so whatever the potential you are applying, यानी इसमें से जो करंट निकल रहा है ना बेटा, ये करंट into this length part of relation, potential across your A to C, potential across your A to C will be equal to your potential gradient, that is V by L into your X. Potential across your AC is equal to how much for me? K into your X part of relation. K is nothing but potential gradient into your X. ये आया कैसे बेटा, देखो जल्दी से, VAC is equals to your K into your X. आया कहां से, देखो ये बेसिकली मैंने आपको बोला जब इस करंट इस वायर में जा रहा है, the current, whatever the constant current is going, for every unit length, potential is always remaining for me constant. Potential for your unit length is always remaining for me your constant part of relation. यानी अगर मान के चलो K is equals to मेरे पास like 6 volt per meter है, यानी it is 6 volt for every 1 meter, isn't it? It is 6 volt per your every 1 meter. यानी अगर 1 मीटर के लिए अगर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, तो 2 मीटर्स के लिए कितना बन जाएगा? 2K बन जाएगा, 2K, isn't it? अगर 3 मीटर्स के लिए लिख रहा हूं तो कितना बन जाएगा? 3K बन जाएगा. तो x मीटर के लिए कितना बन जाएगा? x टाइम्स ऑफ योर K. Is it clear? yes sir. Isn't it? So now x मीटर के लिए, this one is x मीटर बेटा, 3 मीटर 2 मीटर, x मीटर के लिए कितना होगा मेरे पास? x मीटर के लिए x into your K part of relation. यानी पोटेंशियल फॉर दिस वन A to C के लिए कितना हो जाएगा? K into your x. For this x meters, potential across your A to C will be equal to your K times of that x part of relation. Is that clear for everyone? Yes sir. Isn't it? नहीं समझ में आया? फिर एक बार बोलो, एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, और एक थोड़ा दूसरा मेथड में भी समझा दो. मान के चलो मेरे पास ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर है, और ये पोटेंशियल ड्रॉप है. दिस वन इज योर पोटेंशियल ड्रॉप, यानी पोटेंशियल डिफरेंस. अगर L लेंथ पे अगर अपने पास V है, तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 1 मीटर ऑफ लेंथ के लिए कितना लिखोगे? V by L लिखोगे. 2 मीटर्स के लिए कितना लिखोगे? 2 के लिए कितना लिखोगे? V by 2V by over L लिखोगे. 3 के लिए कितना लिखोगे? 3V by over L. तो वैसे x के लिए कितना लिखोगे? XV by over L. तो वही लिखा ना मैंने, XV by over L, isn't it? अगर मैं x के लिए लिख रहा हूं बेसिकली, so this will become for me XV by your L part of relation. ठीक है ना? तो x के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अक्रॉस दिस AC will be equal to your K into your x. अगर 1 मीटर के लिए K है, तो 2 मीटर्स के लिए 2K, 3 मीटर्स के लिए 3K, x मीटर के लिए x times of your K. तो पोटेंशियल अक्रॉस your AC for this x meter will be equal to how much for me? K into your x part of relation. Is it clear? Is it clear? Yes sir. Yes sir, clear. Number 1. मैंने आपको क्या बोला था? It is used to measure what बेटा? EMF of the cell. First one is it is used to measure. It is used to measure EMF of a cell. It is used to measure what? EMF of a cell बोला था मैं. EMF of a cell. यानी मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक सेल है. This one is negative terminal, positive terminal, negative terminal, positive terminal part of relation. And this one is connected to this one like this. ये हो गया एक पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ से यहाँ तक ये टर्मिनल पॉइंट ये है, और ये हो गया एक टर्मिनल ऑफ योर पॉइंट बी.
इन दोनों के बीच में अपने पास एक पोटेंशियोमीटर वायर होता है। द लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज जनरली फ्रॉम 4 मीटर्स टू योर 10 मीटर्स होता है, बहुत बड़ा होता है बेसिकली। आप लोग एक बार एनसीईआरटी से निकाल के उस एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। सो ये से हम लोग जा रहे हैं बेसिकली फ्रॉम ए टू योर बी, दिस इज मिनिमम 4 मीटर्स एंड मैक्सिमम ऑफ योर 10 मीटर्स, या कभी कभी 6 मीटर से लेके 10 मीटर्स भी ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ए टू बी इज नथिंग बट ऑफ योर वाई एंड इट इज कनेक्टेड टू योर बैटरी राइट नाउ। यहाँ पर जब आप बैटरी लगा रहे हो ना, तो ध्यान देखो, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर जब आप बैटरी लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू रिमेंबर। जब भी आप ईएमएफ लगा रहे हो तो इस टर्मिनल अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव। ये इसका हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर आर, और यहाँ पर हो गया इसका गैल्वेनोमीटर एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू द जॉकी, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर जे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, बैटरी ऑफ योर ईएमएफ जो भी लगा रहे हो आप, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, इट विल नेवर वर्क। Null point. ये Yes. isn't it? This one is your A, this one is your C. What do you call that one? जॉकी का पोजीशन है A, B and this one is C. And this one is say मान के चलो X मीटर के पास गैलोनोमीटर रीडिंग 0 है, मान के चलो गैलोनोमीटर रीडिंग 0 है, मतलब करंट थ्रू दी गैलोनोमीटर कितना हो गया? 0। यानी एट द पॉइंट ऑफ X, और ये पॉइंट है मान के चलो Y, X एंड Y और A एंड C के पास ही अगर पोटेंशियल सेम होगा तो ही इसके अंदर करंट 0 होगा, होगा कि नहीं? Yes, मान sir. के चलो यहाँ पर 10 लीटर्स ऑफ वाटर है और यहाँ पर भी 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, और दोनों को आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो क्या पानी फ्लो होगा इसमें से? फ्लो नहीं होगा ना। देखो यहाँ से A टू C के बीच में एक बकेट है जिसमें 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, X टू Y के बीच में भी एक बकेट है जिसमें 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, और दोनों को आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो क्या वाटर फ्लो होगा उसके अंदर? नहीं होगा। No, sir. Potential difference is same. So can I say that potential difference delta V of your AC is equals to your delta V of your X and Y. ठीक है, potential of your X and Y. So whatever is the potential of your AC, उतना ही potential अपने पास X और Y के पास है, X and Y के पास है. So potential across your AC कितना है मेरे पास already? Potential across your AC is equals to your what? K into L or V by your L लिख सकता हूँ मैं basically. ठीक है ना? So this will be equal to how much for me? This one is V by L into your X is equals to potential across your X and Y क्या है मेरे पास? EMF है. That is nothing but your E. ठीक है? Yes, sir. So तो अभी ये कैसे लिख सकता हूँ देखो मैं. Can I write this one as of your? Then E is equals to V by L is nothing but what beta K. This one is K into your X. So this is the EMF of the cell. So EMF of this cell is what? E is equals to your K into your X part of relation. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. First one is it is used to measure the EMF of the cell. So that EMF is directly proportional to your X. Removing the proportionality constant, we get a K. That K is known as of your potential gradient. V by L is nothing but of your K part of relation. तो इसमें हम लोग को दो तीन पॉइंट याद रखना अच्छी तरह से. एक देखो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ जो टर्मिनल है वही टर्मिनल यहाँ पर होना चाहिए. पोलैरिटी ऑफ द बैटरी शुड बी इक्वल टू योर पोलैरिटी ऑफ योर सेल. ठीक है ना? सो यू कैन राइट दैट वन. polarity of your battery must be equal to polarity of cell. That means if battery positive है तो सेल भी आपको पॉजिटिव ही कनेक्ट होना चाहिए. ऐसा ये बैटरी है और ये सेल है मान के चलो. ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए. और बैटरी की जो ईएमएफ होती है बेसिकली बैटरी की ईएमएफ ऑफ योर बैटरी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ योर ईएमएफ ऑफ योर सेल. ईएमएफ ऑफ योर सेल ये कंडीशन है, यानी इससे जो पावर निकल रहा है बैटरी का वो सेल से ज्यादा होना चाहिए. दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ योर पोटेंशियोमीटर. ठीक है ना? Yes, sir. And this wire is made up of what बेटा कोई बता सकता है क्या? This wire is made up of your manganese, constant यूरेका, और बोल सकते हैं आप लोग constantan, और it is also made up of your यूरेका. Last time मैंने आपको मीटर ब्रिज में बताया था. This is made up of यूरेका. Reason क्या था? They are temperature independent resistance.
These are what? Temperature independent. यहाँ पर लिखा Temperature independent. they are temperature independent. They are temperature independent. यानी ये वायर जो है ना, it is independent of your temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ा या कम हो उससे कुछ लेना देना नहीं होगा उसके लिए. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So that was a given condition. Yes, sir. क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इस पे. मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकुलेशन, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर वायर. कौन सा वायर? पोटेंशियोमीटर वायर. सो दिस इज योर टर्मिनल ए, दिस इज योर टर्मिनल बी, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर बेटा. एंड इट इज हैविंग एन ईएमएफ राइट नाउ हियर. यहाँ पर जो है ना एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल लगाया गया हुआ है, एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर गैल्वेनोमीटर एंड दिस वन इज गिवन कनेक्शन. और टोटल वायर मान के चलो मेरे पास 10 मीटर्स का है. सो यहाँ से यहाँ तक ये है मेरे पास 10 मीटर्स, और ये बैलेंसिंग लेंथ है x, और ये पोटेंशियल है मेरे पास 20. ये देखो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ योर दिस वन. तो ये मान के चलो सम 8 वोल्ट है, isn't it? Find the x. यहाँ पर क्वेश्चन है देखो राइट नाउ. Find x such that G shows no deflection. G shows no deflection. मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 0. चलो जल्दी से बताओ. 4 meters. हो गया. क्यों? इसका पोटेंशियल जो भी हो रहा है यहाँ पर, that must be equal to the potential of this one बेटा. Potential gradient V by L into your x will be equal to your EMF. V कितना है मेरे पास? 20. देखो this one is 20 divided by length. Length कितना है मेरे पास? 10 meters. into your x निकालना है. EMF कितना है मेरे पास? 8 volt. तो ये चलेगा, ये चले गया. So this one is 2 1s are 2 4s are. So x is equals to how much for me? 4 meters. X is equals to 4 meters. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से. मान के चलो we got a potentiometer wire. Potentiometer wire is 10 meters. 10 meters long, and a potential difference of 6 volt is maintained. 6 volt is maintained between its ends. Between its ends. Find the EMF of a cell. Find the EMF of a cell which balances against a length of 180 centimeter of potentiometer wire. 180 centimeter of your potentiometer wire. I'll give the options. 1.02 volts. Second one is 1.80 volt. Third one is 1.08 volt. And fourth one is 1 volt. चलो, ये पोटेंशियोमीटर वायर है कितना? 10 मीटर्स. तो देखो यहां से यहां तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है कितना आ रहा बेटा? Third option, sir. ये हो गया ये, और ये हो गया B. Yes, sir. Third option. Third option is the answer. Very good. तो ये पोटेंशियोमीटर वायर इज हाउ मच फॉर मी बेटा? 10 मीटर्स. ये हो गया मेरे पास 10 मीटर्स. यहां से यहां तक ये हो गया मेरे पास 10 मीटर्स. एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द एंड्स. यानी यहाँ पर समवेयर अबव राइट नाउ हियर, यहाँ पर जो है ना ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है बेसिकली, हियर द पोटेंशियल अप्लाइड इज हाउ मच फॉर मी? 6 वोल्ट. देन फाइंड द ईएमएफ ऑफ योर सेल. ईएमएफ ऑफ योर सेल मतलब कहाँ? यहाँ पर नीचे लगाओगे. यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव, और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया जॉकी राइट नाउ जी, और ये हो गया मेरे पास x. फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. ये ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज हाउ मच व्हिच बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ, यानी x इज इक्वल टू हाउ मच है? 180 सेंटीमीटर्स. 180 सेंटीमीटर्स. ये 10 मीटर से 180 सेंटीमीटर से बेटा. तो ई वैल्यू कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या अभी बताया मैंने आप लोग को. E इज इक्वल्स टू k इनटू योर x. तो E इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? V by L into your x. तो V कितना है मेरे पास? 6 वोल्ट. सो इट इज 6 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है मेरे पास? 10 मीटर इनटू x. x कितना है? 180 सेंटीमीटर से. तो मीटर्स में कितना बन जाएगा? 1.8 मीटर्स.
इसको कन्वर्ट कर लेना बेटा, दिस 180 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1.8 मीटर्स, इसको कन्वर्शन कर लेना है बस, बाकी का सब नीचे हो जाएगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन, कितना आ रहा है देखो, ये मीटर मीटर चले गया, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ वोल्ट बिकॉज इज योर 6 वोल्ट, तो कितना आ रहा है देखो जल्दी से 18 पॉइंट दिस वन, तो ये हो जाएगा 10.8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10, तो कितना बना, सो दिस विल बी 1.08 वोल्ट बना सभी को। Yes, sir. चलो वेरी गुड। सर एक बार समझाइए। देखो बेटा उसने क्या बोला, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये देखो पोटेंशियोमीटर वायर A to B है और इस पे ऊपर लगा हुआ कितना पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और उसने क्या बोला फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल, ये EMF कितना है, दिस E is equal to how much when it is balancing, X is equal to 180 सेंटीमीटर है, ये 180 सेंटीमीटर से 10 मीटर से, तो दोनों डिफरेंट यूनिट्स में सबको एक ही यूनिट में ला लेना है बेसिकली, तो 180 सेंटीमीटर्स को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इट इज 1.8 मीटर्स। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, E is equal to K into X, K की फॉर्मूला क्या है, V by L into X, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, लेंथ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 मीटर्स, ये पूरा लेंथ कितना है मेरे पास 10 मीटर्स, EMF निकालना है, X वैल्यू कितना है बेटा 180 सेंटीमीटर्स यानी 1.8 मीटर्स, इसको सिंप्लीफाई कर लो, विल गेट द आंसर फॉर दैट। क्लियर है? थैंक यू। यस सर क्लियर। अब ये क्वेश्चन करो बेटा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर सेल राइट नाउ यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, मान के चलो फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज ए पोटेंशियोमीटर वायर, ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर वायर विच इज अगेन मान के चलो 10 मीटर्स, ठीक है ना, एंड इट इज कनेक्टेड टू योर EMF राइट नाउ हियर, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव एंड ये हो गया गैल्वेनोमीटर एंड दिस वन इज राइट। सर नल पॉइंट नहीं आता, सो दिस विल बी योर X, नल पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड X इज इक्वल्स टू हाउ मच, नल पॉइंट नहीं आता सर, क्यों, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो है सर मेरे टर्मिनल, Polarity is different ना sir। वेरी गुड, बिकॉज दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, सो नल पॉइंट आने का चांस ही नहीं है मेरे को यहाँ से यहाँ तक। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बेसिकली क्लास पढ़ाते से टाइम पे, जब भी आप लगा रहे हो पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, बैटरी की और सेल की EMF की पोलैरिटी सेम रहेगा तो ही वर्क करेगा, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव है और यहाँ पर EMF का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करेगा है, सो ये पॉसिबल ही ना होगा, सो इट विल नॉट वर्क, सो इट विल नॉट वर्क। क्लियर है? यस सर, आया सभी को? Yes. Yes, sir. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है राइट नाउ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मान के चलो 4 ohms बेसिकली, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियोमीटर वायर लगाया गया हुआ है, मान के चलो दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर, दिस वन इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज योर 10 मीटर्स, दिस वन इज योर 10 मीटर्स, और नीचे अपने पास EMF है राइट नाउ, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर सेल है, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये हो गया गैल्वेनोमीटर और ये हो गया यहाँ पर जॉकी, and this is the value of your X, ठीक है, and the resistance of this one is given as resistance of the wire AB is equals to your 8 ohms, ठीक है, so potential drop in the wire is how much, potential drop in wire is how much, potential drop in wire is equals to how much, चलो जल्दी से करो। सर बैटरी की वो नहीं है सर, पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल दे रखा है, इसकी पोटेंशियल दे रखा है मान के चलो 48 वोल्ट और इसका दे रखा है 12 वोल्ट, या कुछ भी ले सकते हो, इसको हाफ 12 ले लो, इसको 6 ले लो, जो भी करना है करके देखो जल्दी से। 32 वोल्ट सर। वेरी गुड, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना आया 32 वोल्ट आया सभी को? यस सर। पहले आर इफेक्टिव बताओ, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू हाउ मच, 8 ohms प्लस 4 ohms, 8 प्लस ऑफ योर 4, तो ये कितना हो गया 12 ohms, तो पोटेंशियल कितना है मेरे पास 48 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा इसमें से ये निकालना है मुझे, तो करंट आएगा मेरे को I इज इक्वल्स टू V बाई ओवर R, तो V की वैल्यू कितनी है 48, R की वैल्यू कितनी है 12, तो करंट आ गया 4 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, potential drop of the wire, potential drop in wire will be equal to, potential drop in the wire is equal to how much for me, I into R, I कितना है 4, resistance of the wire कितना है 8, 4 8s are 32 volt, ठीक है। Can anyone find, इसमें और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, find X,
Find x is equals to how much? 3.7. Find x is 3.75. equals to how much? कोई बता सकता है? 7 3.75. sir. कैसा आया बताओ जल्दी से. V by L E is equals V to by E L by into L x into is x. equals to E. E की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 है. 12. पोटेंशियल कितना है मेरे पास? 42/10. 32 लेना. ये पोटेंशियल है अभी. पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर इज 32. So it is 32. Don't take 48. So it is 32 by length कितना है मेरे पास? 10 meters into your x. तो इसमें से x निकालना है. तो x will be equal to how much बेटा? 12 into 10 divided by 32. तो कितना बना? 3.75. 3.75 meters. निकला सभी को? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. चलो वेरी गुड. और एक क्वेश्चन कर लें इस पे जल्दी से. मान के चलो we got a potentiometer. We got a potentiometer wire that is AB having length capital L and resistance 12R and resistance 12R is joined to a cell of EMF E and internal resistance smaller. A cell having EMF SLC मान के चलो. A cell C having EMF E by 2 and internal resistance 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer shows no deflection. ठीक है ना. तो ये हो गया बैटरी. मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो ये हो गया एक EMF बेटा और इसका हो गया एक रेसिस्टेंस यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक एक वायर है मेरे पास इस तरह से. And here this one is positive, this one is negative, this is positive, this is negative, this is cell C. और यहाँ पर अपने पास गैल्वेनोमीटर है and this one is connected to here and this one is your jockey. This is your terminal A, this is your terminal B. This is having an EMF E and internal resistance of this one is R, isn't it? तो potentiometer wire AB having the length L. तो इसका length कितना है मेरे पास? L है. So यहाँ से यहाँ तक इसका length है मेरे पास capital L and resistance इसका resistance कितना है? 12R and is joined to a cell of EMF E, internal resistance R. A cell C, ये हो गया cell C बेटा. ये cell C है having an EMF. इसका EMF है E by 2 and internal resistance 3R. इसके पास internal resistance है 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer shows the no deflection will be equal to your how? बताओ जल्दी से. One step answer. इससे पहले ग्रे सर का ही करना है बेटा. ये प्रॉब्लम आप लोग ने जैसे किया ना बेसिकली. कौन सा प्रॉब्लम है राइट नाउ? करंट का. ये वाला सेम इसी तरह से करना. आर इफेक्टिव निकालना है, करंट निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, देन यू सिंपलीफाई. दैट्स इट. आया? क्या हुआ? ऑप्शंस दूं क्या? हमें ऑडिबल? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर रहे हैं sir. क्या? अच्छा ऑप्शंस दूं क्या? Yes, sir. 13 by 24 into L
Second one is 11 by 24 into L. Third option is 5 by 24 into L. And fourth one is 11 by 12 into L. Fourth one is 11 by 12 into L. अच्छा क्वेश्चन. क्या हुआ? मुनाम मुनाम क्या नाम है बच्चे? 24 आ रहा है सर. क्या बोले? कौन सा ऑप्शन लिखोगे? $13 by 24 L. Very good. 13 by 24 into L is the answer. ये कौन बोला आंसर? मुनाम. वेरी गुड. देखो जल्दी से देख लेते हैं. इसमें से पहले जो इसमें करंट निकालो I. तो करंट कैसे निकालोगे? I is equals to E by R effective. So it is equals to E. R effective कितना है बेटा? 12R plus of your R. ठीक है. देखो ये 12R है. इसका रेजिस्टेंस भी है R. तो R हो गया. तो ये कितना बनाया? E by your 13R is your current. Then potential across your A to B कितना हो जाएगा बेटा? So potential across your AB will be equal to the total current I into resistance of this one. That is nothing but 12 into R. तो I की वैल्यू कितनी है? E by your 13R into your 12R. AR चले गया. So it is 12 into E divided by 13. So this is the potential across your AB. ठीक है ना? अब पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ. कोई बता सकता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? K is equals to your VAB divided by your L. So that will be equal to 12 into E by 13 into your L. So this is your potential gradient. अब अपने को चाहिए कहां पर? देखो इस पे ना A to J के पास इसका EMF कितना है? ये फॉर्मूला लगा दो. So what is our formula? Can anyone tell me? E is equals to your K into your X. E की वैल्यू कितनी है? E by 2 है. K की वैल्यू कितनी है? 12E by your 13L into X. तो ये E और ये E कैंसिल हो गया. तो X की वैल्यू कितनी आ गई? X is equals to ये हो गया 13 into L. ये हो गया 12 into 2 24. So answer is X is equals to 13 into L by over 24. आया सभी को? Yes sir. Very good question बेटा. Yes, very good question. ठीक है. Yes sir. इंपॉर्टेंट वाला है. इसको स्टार मार्क डाल के लिख लो बेटा. और ट्राई टू डू इट व्हेनेवर यू गेट सम टाइम टू ट्राई टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है ना? चलो ये था अपना स्टार्टिंग वाला. और इसके प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में कर लेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्लियर है सभी को. इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? ईएमएफ ऑफ द सेल. कैसा निकालना मैंने मैक्सिमम मॉडल्स आप लोग को करवा दिया. इससे हटके आपको नीट में पूछेगा नहीं. अगर पूछेगा तो थोड़ा टफ जाएगा. तो ये लेवल का प्रॉब्लम होगा जैसा मैंने अभी बताया. बस बाकी का पूरा बस अपने को थोड़ा बहुत डायग्राम याद रख लेना है. और थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोग इस पे मास्टरी कर सकते हो आराम से. So what is the principle of your potentiometer beta? If a constant current is passed through a wire of a uniform cross sectional area, then potential difference across any segment of the wire is proportional to the length. So V is directly proportional to L का concept दिया. Potential gradient लगा दिया. तो इसमें हम लोग EMF निकाल रहे हैं पहले. To measure the EMF of a cell जो फॉर्मूला अपने को आया E is equals to K into X. K is nothing but how much for me? V by L part of relation. और इसमें हम लोग के याद रखने के conditions क्या है? Polarity of the battery must be equal to the polarity of your cell, and EMF of the battery should always be greater than the EMF of your cell part of relation. Is it clear for everyone? Yes sir. Yes sir. अब next use क्या है बताओ जल्दी से. What is the second use बोला था मैंने? It is used to compare the EMF of your cells. It is used to compare the EMF of your two cells. So let us try to do this one right now faster way. Second one. So it is used to what right now? Comparison of two cells. Comparison EMF of of two cell. EMFs of two cells. EMF of your two cells. हम लोग यहाँ पर two cells रख रहे हैं बेटा. Two cells in series में parallel रख सकते हैं या two cells in your what do you call that combined dividend. Any conditions we can make it out right now for this.
अब देखो बेटा होता क्या है बेसिकली, वायर देखो मैं यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास सेल है यहाँ पर, isn't it? और यहाँ पर मेरे पास एक रियोस्टैट, रियोस्टैट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस। ये हो गया ई नॉट, इस सेल को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग सेल बेटा, और ऊपर वाले सर्किट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी सर्किट। और इन दोनों के बीच में अपने को वायर कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट इज योर वायर। तो मान के चलो ये दोनों के बीच में अपन लोग ने वायर कनेक्ट कर दिया, से ये हो गया ये और ये हो गया बी। ओके, सो दिस इज योर कंपैरिजन राइट नाउ फॉर दिस वन, जिसका लेंथ एल है और इसमें से अपने को करंट निकल रहा आई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी सर्किट। दिस वन इज नोन एज ऑफ योर प्राइमरी सर्किट। और ये रियोस्टैट है। व्हाट इज द रोल ऑफ योर रियोस्टैट बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ योर रियोस्टैट? रियोस्टैट इज यूज्ड टू एडजस्ट द रेजिस्टेंस बेटा, यानी अगर मैं इसको यहाँ पर कट कर दूं तो आई कैन यूज इट टू कंपेयर। सो यहाँ पर लिखा कि इसको ऐसा लगा, ऐसा, तो जितना मुझे रेजिस्टेंस चाहिए उतना वाला रेजिस्टेंस से ही अपना फ्लो ऑफ ए करंट करा सकता हूं। सो देयर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन, दिस आई एम्पियर पार्ट एफिलिएशन। नाउ वी आर यूजिंग द कंपैरिजन ऑफ ए सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे बेसिकली वी विल बी ट्राइंग टू कनेक्ट द सेल्स राइट नाउ। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पर भी मैं एक पॉजिटिव सेल ले लो, यहाँ पर एक नेगेटिव सेल, देन विथ योर की कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर भी एक सेल ले रहा हूँ पॉजिटिव, एंड दिस वन इज नेगेटिव विथ योर की कनेक्शन राइट नाउ, एंड बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू योर सम पॉइंट। और यहाँ पर अपने पास गैल्वेनोमीटर होगी, एंड हियर दिस वन इज कनेक्टेड टू योर जॉकी, दिस इज नथिंग बट जे, एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ योर सी। ठीक है, ये बेसिक सेटअप है। इसका ईएमएफ है मेरे पास E1, इसका ईएमएफ है मेरे पास E2, and this is the switch S1 and this is the switch S2. When the switch is being closed, अगर मुझे इससे काम करना है तो I'll close this one, I'll keep this one open, isn't it? तो I'll try to close. अगर मुझे कंपेयर करना है E1 तो मैं क्या करूंगा, E1 को कंपेयर करूंगा। So when E1 is being closed, अगर मैं इसको क्लोज करूं, ये ओपन करूं, तो क्या हो जाएगा, there is a flow of a current only through this EMF। ठीक है ना बेटा? So A to C मान के चलो, it is balancing at a length of your L1, it is balancing at a length of your L1 part। यानी जब EMF क्या बन जाएगा बेटा, E1 is equals to K into your L1। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो बेटा इसको खोल रहे हैं बेसिकली, we are opening this one and I am closing this one, second one। So मैं जब इसको क्लोज कर रहा हूँ, it should be open, so at that time the balancing length will be changing। मान के चलो बैलेंसिंग यहाँ पर कहीं पर आ गया C, एंड ये हो गया मेरे पास L2। ठीक है ना? तो at that time E2 is equals to K into your L2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो E1 by E2 अगर कर रहा हूं मैं, E1 by E2, K और K will get cancelled, so this will be L1 by your L2। So for comparing the EMF of your cells, we'll be using the relation E1 by your E2 is equals to your L1 by your L2। Is that clear? Yes sir। फिर से एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द EMF of a two cell। ये मेरा प्राइमरी सर्किट है बेटा, और नीचे वाला जो भी है, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑफ योर सेकेंडरी सर्किट, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑफ योर सेकेंडरी सर्किट। नो सी, प्राइमरी सर्किट्स में से जो ईएमएफ लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर ड्राइविंग सेल। रियोस्टैट इज नथिंग बट वेरिएबल रेसिस्टर, इसमें से जो करंट निकल रहा है इट इज गोइंग टू योर, ये जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट। अगर मुझे ईएमएफ E1 कंपेयर करना है, आई विल ओपन द स्विच S2 and I'll close the switch S1, so there will be the flow of a current only through this one। ठीक है? So at that time E1 will be balancing across your AC, so E1 is equals to K into L1। Now if I need to compare E2, I will open the switch S1 and I'll close the switch S2, so E2 will be equal to K into L2। If I comparing right now both of them, so E1 by E2 will be equal to how much beta, L1 by your L2 part affiliation। So this is the formula which you need to remember while doing the formulas related to your comparison of your EMF of your cells part affiliation। Is that clear for everyone? Yes sir। Isn't it? अगर यहाँ पर देखो कभी कभी क्या हो जाता, he can use two cells in the series at a time। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ बेसिकली, if two cells are used in series, then E1 plus of your E2 balances the length L1, isn't it? If two cells with opposite polarity, E1 minus E2, opposite polarity is used, तो जब क्या हो जाएगा, E1 minus E2 is proportional to your L2। I am providing that E1 is greater than of E2, assume कर रहा हूं मैं बेसिकली।
तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहा हूँ तो K इंटू L1. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. एंड E1 माइनस ऑफ योर E2 इज इक्वल्स टू K इंटू योर L2. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो डिवाइडिंग 2 बाई योर 1, सॉरी डिवाइडिंग योर 1 बाई 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लो. सो इट इज E1 प्लस ऑफ योर E2 divided by your E1 minus of your E2 is equals to KK will get cancelled. So it is L1 by your L2. By compendo dividendo rule. By compendo and dividendo rule. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो I'll be writing here E1 by your E2 is equals to your L1 plus of your L2 divided by your L1 minus of your L2. Is that clear for everyone? Yes, अगर sir. मैं एक सेल के बजाय यहां पर ही 2 सेल लगा दूं, यहां पर एक सेल और उसके साथ और एक सेल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2. नीचे की जगह मैं अगर ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी लगा रहा हूं, एक पॉजिटिव लगाया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव लगाया, देन इट विल बी E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर L2. ठीक है? Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को? कोई कुछ पूछ रहे थे? No, sir. कुछ भी नहीं है? नो सर. No, sir. कोई कुछ बोल रहे थे ना बेटा? तो ये हो गया अपना कंपैरिजन ऑफ योर सेल्स बाय योर EMF ऑफ योर सेल्स पार्टिफिलेशन. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. चलो एक प्रॉब्लम Yes, कर sir. लें इस पे जल्दी से. So let us try to do one problem based on this one बेटा. मान के चलो मेरे पास 2 cells है. We have got 2 cells of EMFs E1 and E2, and I'm saying that E1 is greater than E2. Okay, and E1 is greater than of your E2. When a potentiometer is connected across AB, the balancing length is 300 centimeter. On connecting same potentiometer, PM लिख रहा हूं बेटा, potentiometer between A and C, the balancing length is 100 centimeter. First of all, calculate the ratio of E1 and E2. डायग्राम ऐसा दे रखा है बेटा. ये हो गया एक सेल यहां पर, और यहां पर हो गया एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये हो गया इस कॉम्बिनेशन, और ये हो गया टर्मिनल A, और ये हो गया टर्मिनल B, और ये हो गया टर्मिनल C. इसका EMF E1 है और इसका EMF है E2. अब बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो. मेरे पास 2 cells है E1 and E2. Obviously E1 is greater than E2. So when a potentiometer is connected across A and B, तो पहले आप पोटेंशियोमीटर किसके बीच में कनेक्ट कर रहे हो, A and B के बीच में कनेक्ट कर रहे हो. कनेक्टिंग द पोटेंशियोमीटर अक्रॉस योर A and B. यू आर कनेक्टिंग द पोटेंशियोमीटर अलोंग योर A and B. तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आया, 300 सेंटीमीटर के पास, isn't it? That means E1 is directly proportional to your 300. आया है? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आपने कहां कनेक्ट कर दिया, इसको निकाला, फिर यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम योर A टू योर C. यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम योर A टू C. तो E1 एंड E2 कौन से टर्मिनल में है बेटा, ऑपोजिट टर्मिनल. ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2. E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब बैलेंसिंग लेंथ कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर्स. So this will be equal to your 100 centimeters. This is equation number 2. ठीक है ना? So therefore I can write E1 minus E2 divided by your E1 is equal to, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, divided 2 divided by 1. So that will become for me how much बेटा, 100 divided by 300. Proportionality constant निकालो तो constant चले जाएगा. So ये 0 चले गया. This one is your 1 by 3. यानी 1 minus E2 by your E1 is equals to 1 by 3.
ठीक है ना। तो ये बना कितना बेटा, E2 by your E1 is equals to, ये इधर चले जाएगा, दिस विल बी 1 minus of 1/3, so that will be equal to your 2/3. तो E1 by your E2 बना कितना, E1 by E2 is equals to 2/3 और the answer is 3:2. आया सभी को? Yes sir. Is it clear for Yes, everyone? sir. Yes, sir. Clear है? Yes. Yes sir. और एक क्वेश्चन करोगे? Yes sir. चलो राइट दिस क्वेश्चन बेटा। मान के चलो मेरे पास ये पोटेंशियोमीटर वायर, a potentiometer wire, a potentiometer wire is 100 centimeters long. It is your 100 centimeter long and a constant potential difference, a constant potential difference is maintained across it. ठीक है, stop. Two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series. सभी लोग आंसर बोलना इसका बेटा। Are connected in series first to support one another, and then in opposite. The balance points are obtained at 60 centimeter and 12 centimeter from the same end of wire in two cases. In your two cases, find the ratio of EMFs. Find the ratio of EMFs. जल्दी बताओ 3:2. कितने जने बता रहे? सर मेरे को आया 3:2 आया सर। पक्का? Yes sir. Sir 60 plus 12 by 60 minus 12. हाँ तो 72 by 48. वेरी गुड, हो गया ना। मैंने अभी डिराइव करके बता दिया था, मैं फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। E1 plus E2 divided by E1 minus of E2 is equals to L1 by L2। कंपेरेटिव डिविडेंड से रूल से लिखोगे तो E1 by E2 is equal to कितना हो जाएगा बेटा, L1 plus L2 divided by your L1 minus of your L2। L1 plus L2 कितना आ रहा है बेटा, L1 plus L2 कितना है, कहां पर है बेटा, obtained at 60 centimeter plus 12 centimeter, तो कितना हुआ है? Yes sir. 60 plus 12 कितना, 72. then 60 minus 12 48. आया? Yes. कितना आ रहा? 72 by 48 6:4 3:2 आता सर। 3:2 आ गया सभी को? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. आ गया। वेरी गुड। क्वेश्चन देखने के लिए कितना बड़ा है देखो, लेकिन आंसर कितना छोटा है। ठीक है ना? Yes sir. Yes, sir. And Yes, what is sir. the- क्या बोले? Okay. Last. What is the last one बेटा? What is the third use बताया था मैंने? Third use of your potentiometer is Internal resistance. Determination of internal resistance of cell. Yeah, it is used to, next one is internal resistance. Calculation of internal resistance of cell. Internal resistance of a cell. So हम लोग अभी calculate करेंगे internal resistance of your cell part affiliation. It is used to calculate the internal resistance of your cell. याद है किसी को फॉर्मूला? E by R small r is equals to capital R L1 by L2 minus 1.
तो ये हो गया बैटरी बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर अपने पास एक रेसिस्टेंस है विच इज नोन एज ऑफ योर रियोस्टैट पार्ट एफिलिएशन, और यहाँ से यहाँ तक अपने पास एक वायर ले रहे हैं. सो दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस वन, एंड यहाँ पर हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी. ये और बी के बीच में अपन वायर लगा रहे हैं. दिस इज नोन एज ऑफ योर पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना. और नीचे हम लोग इसके पास सेल लगा रहे हैं बेसिकली. तो यहाँ पर अपने पास सेल है, सो इसका हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव. इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये हो गया बेसिक कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर गैल्वेनोमीटर, एंड दिस इज मेड टू पास थ्रू दिस वन. ये हो गया जॉकी, और वी कैन से दिस इज अ पॉइंट ऑफ योर सी. अगर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 है, देन इट विल बी योर बैलेंसिंग कंडीशन, देन दैट विल बी योर बैलेंसिंग कंडीशन. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है ना. तो पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर हम लोग की लगा ले रहे हैं, तो वी नीड टू कीप ए की हियर राइट नाउ. तो यहाँ पर हम लोग एक की लगाएंगे. तो सो इफ आई एम कीपिंग ए की राइट नाउ हियर, तो यहाँ पर इनिशियली बैटरी इज ओपन बेटा, यानी देयर इज अ फ्लो राइट नाउ करंट. तो इसमें से करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 0. डिफ्लेक्शन 0 हो रहा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इट इज बैलेंसिंग इट ए लेंथ ऑफ योर L1, यानी whatever the EMF I am taking this one, this E is directly proportional to your L1, so E is equals to K into your L1, isn't it? ये balance हो गया. When this one is closed, when the key is being closed right now, now there is a flow of a current from this battery to your resistance capital R, ठीक है ना. This is your internal resistance, right? ये पूरा अभी मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है, ये बैटरी मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है बेसिकली, एंड करंट इन द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेल. ओके, बिकॉज यहाँ पर तो करंट कितना हो गया, 0. जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये बैटरी राइट नाउ विल बिकम फॉर मी व्हाट, डिस्चार्जिंग. याद है सभी को, मैंने डिस्चार्जिंग बताया था आप लोग को. ये जब ओपन था तो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन वाज इक्वल टू योर टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस योर AC. सो E इज इक्वल टू K into L1. जैसे ही मैंने ये की क्लोज कर दिया, दिस विल बी राइट नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ योर सेल, isn't it? Now that means whatever the potential we are applying right now for the given condition, so at that time terminal voltage across the cell will be equal to how much for me, V. So V is equals to your K into your L2. Now the new balancing length for this one is मान के चलो somewhere here, and that one I am taking it as of your L2. So now it is at your L2. When it is open, it is balancing at L1. When it is been closed, now because of the internal resistance, the balancing length is been changing. Now that one is equal to what beta, applied potential for me. तो ये हो गया ड्राइविंग सेल E0, और ये हो गया पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन कंडीशन. सो V is directly proportional to your K into your L2, because EMF will be equal to your terminal voltage, will be equal to what, terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज की रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, V से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस सर्किट को बाहर ला लो, दिस इज योर सर्किट राइट नाउ. उसको हम लोग बाहर ला ले रहे हैं. अगर उसको बाहर ला रहे हैं तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो मैं बेसिकली, देखो जल्दी से. ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव. दिस वन इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. सो ये हो गया मेरे पास कैपिटल R, ये हो गया स्मॉल r, और ये हो गया EMF, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन. सो यहाँ पर व्हाटएवर द पोटेंशियल आई एम टेकिंग राइट नाउ, ये हो गया पॉइंट X मान के चलो, ये हो गया पॉइंट Y, और ये हो गया पॉइंट A, और ये हो गया पॉइंट B. तो X will be equal to your A and Y will be equal to B, because they are connected with the same wire. So I can say that potential across your XY is nothing but what beta, terminal voltage. That will be your terminal voltage. Terminal voltage मतलब क्या, discharging है. So what will be the potential for this one? Can anyone tell me? तो इसमें से करंट निकल रहा है, V is equals to I into your R. इसमें करंट कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है क्या? I is equals to your total EMF divided by total resistance. याद है, total EMF by your total resistance in the cell. So I is equals to how much for me? Total EMF is nothing but E. Total resistance is this capital R plus of your small r. तो यहाँ पर डाल दो V. I is equals to E by your capital R plus small r into your capital R. तो ये वैल्यू इधर लेके चले जाओ. Capital R plus of your small r is equals to this one is E by V into your capital R. तो मुझे इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू E by V into your capital R. तो ये R इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव. तो ये R इज इक्वल से कितना बना, R कॉमन ले लो. सो इट इज E by V minus 1 into your capital R. So this is the internal resistance of the battery. ठीक है. नाउ यहाँ पर देखो E की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है. E की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देखो. E की वैल्यू क्या है, E is equals to K into L1,
and V is equals to K into your L2. वो values डाल दो यहाँ पर. So it is your K into your L1 divided by your K into your L2 minus 1 into your capital R. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है. This K will get cancelled. Ultimately, whatever the internal distance I am getting, small r is equals to your L1 divided by L2 minus 1 into capital R. So in terms of the balancing length, the internal distance is calculated with the formula R is equals to small r is equals to L1 by L2 minus 1 into your capital R part of relation. Is that clear for everyone? Yes, Is that sir. clear for everyone? Yes, sir. So this cell is calculated with the formula R is equals to L1 by L2 minus 1 into your capital R. फिर से एक बार देखो बेटा जल्दी से. We are talking about internal distance of a cell बेटा. ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है A to B. ये मेरा ड्राइविंग सेल है, तो हम लोग इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं और इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं. तो पहले हम लोग ने क्या किया, खाली सेल ले लिया, एक सेल ले लिया, ये रेजिस्टेंस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. So whatever the EMF is there, this is balancing across your AC. So at that time this EMF will be equal to K into L1. अब हम लोग ने क्या किया, इस सेल को एक रेजिस्टेंस लगा दिया. Now this will be what like a discharging, यानी यहां से यहां तक जो पोटेंशियल आएगा that will be टर्मिनल पोटेंशियल. तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल मतलब across your V, whatever the potential we are applying, that is V is equals to I into R. ठीक है नहीं? तो जिसके पास जो पोटेंशियल आ जाएगा V. Now when the current is passing through this one, ये जब when you close this one, there is a flow of a current in this one external distance. So balancing length is changing at that time, that is equals to your L2. So that external potential is balancing at a new length, that is L2. So V is equals to K into your L2. When battery is open, EMF is K into L1. When battery is cold, when it is been closed, potential will be equal to your balancing at length L2. So V is equals to K into your L2 part of relation. तो अब ये होगा मेरा बैटरी सेल. तो इस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल बनेगा. ये हो गया पोटेंशियल. तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है. Potential across your A and B will be equal to your I into R. So V is equals to I. I will be equal to how much beta? Total EMF by total distance. Total EMF कितना E है? Total distance capital R plus small r. So I is equals to E by capital R plus small r. वो वैल्यू लेकर के यहाँ पर डाल दिया और इसमें से मैं स्मॉल r निकाल रहा हूँ. सिंपल कैलकुलेशन है. कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया. E by V इधर, तो R को इधर लेके चले जाओ. R is equals to E by V into R minus R. तो it is R को कॉमन ले लिया. E by V minus 1 into R. This is your internal distance in terms of EMF and potential. मुझे EMF एंड पोटेंशियल में नहीं चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 में चाहिए. तो E की वैल्यू है मेरे पास K into L1 और V की वैल्यू है K into L2. K gets cancelled. So R is equals to L1 divided by L2 minus 1 into your capital R part of relation. Is it clear for everyone? Is it clear? Yes sir. Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, टाइम बहुत ज्यादा हो गया शायद. कल इस पे वर्किंग कर लेंगे बेटा. Yes sir. छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप. देन विल ट्राई टू गो फॉर द टुमारो वर्किंग ऑन दिस वन. एक क्वेश्चन कर लो बेटा. A cell gives, छोटा क्वेश्चन है, एक वर्ड में हो जाएगा आपका आंसर. A cell gives a balance with 85 centimeter of a potentiometer wide. When the terminals of the cell are shorted through a resistance. Shorted मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया हम लोग ने पैरेलल में. So through a resistance of 7.5 ohm, यानी ऐसा. शॉर्टेड मतलब क्या, ए रेजिस्टेंस जो लगाए ना हम लोग इस सेल में. शॉर्टेड मतलब ए रेजिस्टेंस लगा दिया अक्रॉस योर सेल. Okay, through a cell of your 7.5 ohm, the balance is obtained. The balance is obtained at 75 centimeter. Find internal resistance. Find internal resistance. बताओ जल्दी से. इस पे हम लोग को बहुत वर्किंग करना है बेटा. पोटेंशियोमीटर, मीटर पेज, अमीटर एंड वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर पे बहुत ज्यादा वर्क करना है. जल्दी से बताओ. 1 आ रहा. R is equals to L1 by L2 minus 1 into capital R. L1 कितना है बेटा, मुझे नहीं पता. 85. L2 कितना है 75 minus 1 into capital R कितना है 7.5. आ गया. Yes sir. कितना आ रहा. वन है सर. आ रहा सभी को, आ गया.
हाँ सर 1 आ रहा। So R will be equal to your 1 ohms. कर दिया ना? ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 85 minus 75 divided by 75 into 7.5. 85 minus 75 कितना? 10. So it is 7.5 into 10 is 75. 75 by 75 कितना? 1. So this is your 1. Clear है? Yes, sir. Yes sir. Tomorrow when you come to the class, Yes, please try sir. to revise complete current electricity and come better. कल और परसों हम लोग exclusively problems करेंगे from all the competitive examination like last previous 10 years के AIMS के questions और अच्छे वाले questions जो भी लगते हैं मुझे I'll try to do it out and also will try to do tomorrow ammeter, voltmeter और galvanometer के comparisons, shunting वगैरह का भी problems खत्म कर लेंगे. ठीक है? Okay, sir. Okay चलो बेटा, take care, bye. Bye. Thank you sir. Thank you, बेटा. sir. Thank you sir.